वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है। संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चंद ना सरद रुत मूल ना मिटही काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उधरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निर्भउ भय मन टोट ना आवे मूल संचया नाम धन संत जना स्यों संग पाइए वडे पुण्य आठ पहर हर ध्याए हर जस नित सुन संत जना स्यों संग पाइए बड़े पुन आठ पहर हर ध्याए हर जस नित सुन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जियो, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो कि आप जी ने
ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨੁਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 709 ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜੋ ਕਿ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ। ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਉਦਰਣ ਦਇਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੈ ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਉਦਰਣ ਦਇਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਜਨ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਪਸ ਤੋਂ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਾਰਿਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ,
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਪਸ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ, ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। उन्होंने अपनी जात अपनी पात नूं लुको नहीं कीता, बाणी दे विच स्पष्ट करके समझा दिता है। जाति ओछा, पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। सो साध संगत जीओ, भगत रविदास जी का अज जन्म दिन, लेकिन गुरु अर्जन पातशाह जी ने जदों भगत रविदास जी की यह पावन बाणी, जो कि अनेका ही शब्द भगत रविदास जी ने उच्चारण किए हैं, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच भगत रविदास जी नूं बिठा दिता, उन्हां दी अमृतमई बाणी नूं दर्ज करा दिता। भगत रविदास जी दे पावन बचन हन, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख वसेरा, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। ये पावन बचन हन, बाणी सानू समझाउंदी है भाई असी हले भी जिस गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिकर सतगुर पातशाह जी ने सानू छुआ छात तो उपर उठा दिता, इथों तिकर कि भगत कबीर जी फरमान करते हैं, आवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जुग उपजिया, कौन भले को मंदे। फिर भलिया तू किहड़ियां जातां पातां दे विच फसिया होया है, तैनू ते 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एको एक बाटे दे विच तैनू अमृत दी दात बख्श दिती, ते नाल ये भी आखिया सी, मानस की जात सब एको पहचान वो। ये क्यों वचन तू भुल जाना है, क्यों अज तू अपने नां दे अगे भी गोत्र लाना है, पिछे भी गोत्र लाना है, अपने आप को उच्ची जाति का दर्शाना चाहता है। लेकिन भगतां दे जीवन वाल झाती मार के वेख लईए, भगत रविदास जी जिन्हां ने अपनी जात नूं लुकोया नहीं, बाणी दे विच अनेका ही थां उन्होंने अपनी जात नूं संसार दे सन्मुख रखिया है। भावें असी कबीर साहिब दा शब्द लै लीए, जात जुलाहा मत का धीर, सहज सहज गुण रवे कबीर। भावें सैन नाई जी का देख लीए, भगत नामदेव जी का देख लीए, सारे साध संग जो सारे ने आपो अपनी जातां बाणी दे विच उजागर कर दित्तियां, संसार अगे रख दित्तियां, ते ये भी दस दिता ये नहीं किते कि मैं उच्ची जाति दा हां ते मैं उस निरंकार दा नाम लै सकदा नहीं। उन्होंने ते ये दर्शिया है वो मालिक सारियां लई बराबर है। जेड़ा मालिक दे विच लीन हो जाता है प्राणी, वो मालिक आप उसकी बाह फड़ लेंदा है ते इस भवसागर तो आप इस जीव नूं पार करा दिंदा है। सो अज दे भी ये पावन बचन हन, गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू समझा रहे हैं
संत उदरण दयालंग आश्रम गोपाल कीर्तन है। साध संगत जीओ, निर्मलंग संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है। सतगुरु पातशाह जी ने संतां दी भगतां दी वडियाई करदियां होया समझाया है, ओ मेरा मालिक निरंकार अपने भगतां नूं इस माया दी तपस तो आप हथ दे के बचा लेंदा है। उन्हां संतां दी संगत कीतियां साडा जीवन भी पवित्र हो जाता है। हे नानक, गुरु अर्जन पातशाह जी बड़े सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दे नाम दी मोहर ला के समझारण, तू भी अजिहे गुरमुखां दी संगत विच रह के परमेश्वर दा पल्ला फड़, ताकि तेरा जीवन भी संसार विच आया सबला हो सके। चंदन चंद ना सरद रुत, मूल ना मिटई काम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। पातशाह जी दे पावन बचन, चंदन चंद ना सरद रुत, मूल ना मिटही काम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। हरि दा नाम जपिया ही इंसान दा छुटकारा हो सकता है। भावें पातशाह जी फरमान करदे ने, चंदन दा लेप कीतियां ते भावें असी चंद्रमा दी चाननी होवे अते भावें ठंडी रुत होवे, इन्हां दे राही भी मन दी जिहड़ी तपस है ना, वो कदे मिटदी नहीं, क्योंकि चंदन नूं ठंडक दा प्रतीक मन्निया गया है। साध संग जो चंदन दा बूटा, चंदन दा पेड़ जिस थां ते हुंदा है, सारे जिहड़े रुख हुंदे हन अपनी सुगंधी दे नाल, अपनी वासना दे नाल उन्हां नूं अपना ही रूप दे दिंदा है। कबीर साहब दे पावन बचन हन, कबीर चंदन का वेड़वा। कबीर साहब दे भी पावन बचन हन, कबीर चंदन का विरवा भला, वेड़ियो ढाक पलास, ओए पी चंदन होए रह वसै जो चंदन पास। चंदन दे नेड़े वसिया वो अपना रूप, अपनी सुगंधत उस बूटियां नूं दे दिंदा है। ते साध संग जो जेड़े जहरीले ते जहरीले, भावें सप बिच्छू आदि कह लीए, सारे चंदन दे बूटे नाल चिंबड़े रहिंदे हन, उस दी ठंड नूं माणदे हन, उस दी सुगंधत नूं महसूस करदे हन। लेकिन उत्थे कबीर साहब ये भी समझा रहे हैं भाई कि जे चंदन दे कोल बांस दा पेड़ होवे, बांस दा, लेकिन वो कदे भी चंदन दी चंगियाई नहीं लै सकदा, क्योंकि पातशाह जी दे पावन बचन हैं, चंदन कै निकटै वसै बांस सुगंध ना होए। चंदन दे नेड़े होण दे नाल भी उस दे विच कोई खुशबू, कोई सुगंधत नहीं आउंदी, क्योंकि उसनूं अपना माण है, उसनूं अहंकार है अपने लंबे होण दा। ते साध संग जो अहंकारी जीव कदे भी भवसागर तो पार नहीं हो सकता। सो गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि ये भावें चंदल कह लीए, चंद्रमा दी चांदनी कह लीए, भावें ठंडियां सर्द रुत्तां कह लीए, लेकिन साध संग जो ये जिहड़ी मन दी तपस है, ये मन दी तपस ते साडी बाणी ने खत्म करनी है। इन्हां दे नाल साडे मन दी तपस खत्म नहीं हो सकती। प्रभु दा नाम सिमरिया ही मनुख दा मन जिहड़ा है वो शांत हुंदा है। साध संग जो दुनिया भी पदार्थां तो इंसान दा मूँह मुड़ जाता है जदों प्रभु नाल जुड़ जाता है जी। पौड़ी चरण कमल की ओट उधरे सगल जन, सुन प्रताप गोविंद निरभओ भये मन।
पातशाह जी दे पावन बचन, कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहते को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। ते इत्थे भी गुरु पातशाह जी फरमान करन, चरण कमल की ओट उदरे सगल जन, सुन प्रताप गोबिंद निरभओ भये मन। प्रभु दे सोने चरना दा आसरा लैके सारे जीव दुनिया दी तपस तो बच जाते हैं ते बच सकते हैं। गोबिंद दी वडियाई सुन के बंदगी वालियां दे मन निडर हो जाते हैं। साध संगत जो उन्हां दे अंदरों डर भै जम्मण ते मरण दा भै जिहड़ा है वो खत्म, वो मुक जाता है। टोट ना आवे मूल संचया नाम धन, जिन्हां ने परमात्मा दा परमेश्वर दा सच्चा नाम धन कमा लिया संसार दे विच, उन्हां दे कदे टोट नहीं आउंदी, उन्हां नूं कदे घाट नहीं पैंदी। सतगुर पातशाह जी दे पावन बचन हन, टोट न आवे कदे मूल संचया नाम धन। भाव जेड़े जीव जेड़े मनुख परमात्मा दा नाम धन अपने हिरदे विच इकत्तर कर लेंदे हन, उन्हां दे वाहिगुरु नाम सिमरन दा भंडार हमेशा उन्हां दे अंदर चलिया रहिंदा है। संत जना स्यों संग पाइए बड़े पुन, आठ पैर हर ध्याए हर जस नित सुन। सतगुर पातशाह जी समझा रहे ने, भाई अठे पैर परमात्मा दा सिमरन करिया कर, परमात्मा दे नाम दा ओट आसरा लिया कर। ओ प्रभु दा नाम धन इकट्ठिया करदे हन ते उस धन विच कदे घाट नहीं पैंदी। असी माया नूं जिन्ना मर्जी जोड़ते रहिए, जिन्नी मर्जी इकट्ठिया करते रहिए, लेकिन उस दा आनंद उस दा आराम कोई होड़ बाणदा है, असी ते सिर्फ इकट्ठिया करन जोगे रह जाने हाँ। फिर इहो जे पदार्थ दा इकट्ठिया करन दा फायदा की जे उस नूं सुख ही प्राप्त ना कीता। सारी उम्र अंदरों अंदरी सड़दे बलदे रहे, ठगियां मारियां, झूठ बोलते रहे, धन ही इकट्ठा करते रहे, लेकिन जदों समा आया वो धन इदां पिया दा पिया रह गया। सो गुरु पातशाह फरमान करते ने, भाई ते उस धन विच कदे घाट नहीं पैंदी। किहड़े धन विच? सिमरन दे धन दे विच। आदेह मनुखा दी संगत बड़े भागां नाल मिलदी है, जेड़े परमात्मा नाल जुड़े भगत संत कह लीए, इहो जे भगतां दी संगत कीतियां जीवन सफल हो जाता है। ये संत जना भाव अठे पैर प्रभु दे सिमरन नाल ही जुड़े रहंदे हन, सदा ही प्रभु दा सिमरन सुणदे हन ते प्रभु दा सिमरन ही इस रचना तो उचारदे हन, भाव सर्ब दा भला मंगदे रहंदे हन। सो साध संगत जो असी भी गुरु दे बचनां नूं हिरदे विच धारण करिए, जो गुरु पातशाह ने सानू समझाया है उन्हां ते पहरा देण दा यतन करिए, ताकि साडे जीवन विच भी शांति प्राप्त हो सके। जिहड़ी अंदर पदार्थां दी तपस है वो दिनों दिन जिहड़ी वधदी जा रही है, गुरु कृपा करन मेहर करन साडे ते, वो साडी तपस मुक जावे ते सानू गुरु चरणां दा ओट आसरा ते संगतां दे चरणां दी धूड़ी मिल जावे ते साडा जिहड़ा जीवन है ये सफल हो सकदा है। सो साध संगत जीओ, अज दे पावन मुखवाग दी विचार आप जी ने सरवण करके जीवन सफल कीते हैं। बाणी दी विचार करदियां दासां पासों बेअंत भुल्लां गलतियां हो गई होणगियां, गुरु अते गुरु दी संगत बख्शण जोग है। बाणी गुरु दी है, भुल्लां दास दियां हन। साध संगत जो जे कोई भी किसी माई भाई दा कोई चंगा सुझाव होवे जो दास नाल सांझ करना चाहुंदे होण ते दास दा ये इंडिया दा नंबर है, आप जी दास नाल सांझ कर सकते हो। 8750 10 63 75 इस नंबर ते आप जी दास नाल अपने विचारां सांझियां कर सकते हो, जां अपने चंगे सुझाव
ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਓ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ, ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।